اسلام آباد میں سرکاری اسکول کے بسوں کی یہ لمبی قطار، جس میں پورے وفاقی دارالحکومت کے اساتذہ کرام سفر کر کے یہاں نیشنل پریس کلب کے سامنے احتجاج کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ان کا احتجاج، اساتذہ کا احتجاج اپنے ان شاگردوں کے خلاف ہیں جو اس وقت بڑے بڑے سرکاری عہدوں پہ بیٹھے ہیں اور اسلام آباد کے سیکریٹریٹ میں اپنی فائلوں کے اندر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا ہے کہ جس سے براہ راست یہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ متاثر ہوئے ہیں، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ جو ان اساتذہ کرام کو ٹیکس میں چھوٹ دی گئی تھی، جو پہلے 70% تھی، پھر 50% کی گئی اور پھر 25% چھوٹ رہ گئی تھی ٹیکس قیمت میں، وہ چھوٹ بھی اب واپس لے لی گئی ہے اور اچانک ہی ان کی تنخواہوں سے کئی ہزار روپے کٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ پورے اسلام آباد کے یہ اساتذہ اپنے ان شاگردوں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ جو پہلے 75% ہوتا تھا اس کو 50% کیا، اس کے بعد 25% کیا، اس کے بعد اب اس 25% کو بھی ختم کر دیا گیا۔ السلام علیکم، مطیع اللہ جان، ایم جے ٹی وی، جہاں اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے سامنے پورے وفاقی دارالحکومت کے سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تمام اسلام آباد کے اسکولوں کے اساتذہ آج یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ مرد اور خواتین اساتذہ اپنی تنخواہوں میں سے ایک جبری ٹیکس کی کٹوتی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور 2022 سے اب ان اساتذہ کی تنخواہوں سے کٹوتیوں کا اچانک آغاز ہو گیا ہے۔ اس وقت یہ اساتذہ اس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ IMF کی طرف سے ٹیکس کی وصولیوں کے جو اہداف تھے وہ اگر حکومت پورا نہیں کر پا رہی تو یہ حکومت کی اپنی نااہلی ہے۔ جو اساتذہ سرکاری ملازموں کو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی ہے وہ واپس نہیں لینی چاہیے تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ تضادات جو حکومت کی پالیسیوں میں ہیں ان کو بھی یہاں پہ ٹیچرز بھرپور انداز سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ صوبیہ وقار IMCG چراں، سر میرا حکومت سے صرف ایک سوال ہے کہ آج کے استاد نے اگر استاد کو انہوں نے سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے تو اس بچوں کا کیا مستقبل ہوگا جن کو ہم اسکولوں میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ حکومت کو خود ہر فیسلٹی چاہیے، ہر ان کو ایرا کمپلیٹ چاہیے، تو ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم ایک مستقبل بنانے جا رہے ہیں اور اتنی دماغی ڈپریشن میں آ جائیں کہ ہم ان کو چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جائیں۔ تو حکومت ہمیں اس سوال کا جواب دے کہ وہ ہم سے بچوں کا مستقبل چاہتی ہے یا ہمیں سڑکوں پہ لانا چاہتی ہے۔ میں صوفیہ خانم IMCG چراغ سے سیکٹر نلور سے ٹیچر ہوں، اور یہ جو ایک دم سے ہماری تنخواہ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، ہمیں بغیر بتائے ہمارا جو وہ 25% چھوٹ تھی ٹیکس کی وہ ختم کر دی گئی۔ ہماری پے سلپ آئی اور ہمیں پتہ چلا کہ پہلے جتنے پیسے کٹتے تھے اس سے زیادہ پیسے ہمارے کٹ گئے ہیں۔ تو کم از کم پہلے بتایا جائے، کچھ ہمیں انفارم دیا جائے، لیٹر ایشو کیا جائے، کوئی انفارمیشن تو دے۔ اچانک سے جو ہے وہ ہماری تنخواہ جو ہے وہ کم آئی اور ہمیں پتہ چلا۔ تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ یہ ہماری جو ٹیکس کی چھوٹ تھی ٹیچرز کو وہ بحال کی جائے۔ میں فیڈرل گورنمنٹ کے اسکول میں پرنسپل ہوں، اور آج ہم ادھر پروٹیسٹ کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، جو کہ منسٹری نے ٹیچرز کو ریبیٹ دیا ہوا تھا ٹیکس کا، وہ اچانک سے ختم کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس مہینے ہماری جو سیلری ہے یہ ٹیکسز اس میں ڈبل ہو گئے۔ پہلی بجٹ جو ہے بہت زیادہ مشکل سے ہمارا ہوتا ہے گھر کا چلانا، تو اس وجہ سے اور زیادہ مشکل ہو رہا ہے۔ باقی محکموں میں، ایون ایجوکیشن منسٹری میں بھی سب کو الاؤنسز ملتے ہیں، اور MNAs کو بھی تنخواہیں ڈبل کی ہیں اور ڈبل سے بھی زیادہ کی ہیں، لیکن ہم بھی گورنمنٹ سے یہی کہیں گے کہ ہمارے جو ٹیکس ریبیٹ ہے وہ واپس ہمیں ملے، اور ٹیکس کے اندر، اور بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ الاؤنسز جو ہیں وہ بھی انکریز کیے جائیں۔ السلام علیکم، میرا نام مبشر حسن ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں FD کے اندر، اور ہمارا ایکچولی بیسک مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارا ریبیٹ 25% ختم کیا ہے، اور ایک تو ہمیں ٹیچنگ الاؤنس بھی نہیں دے رہے، تمام اسٹاف کو ٹیچنگ الاؤنس نہیں مل رہا، اور اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں یہ ایجوکیشن الاؤنس دے، ٹیچنگ الاؤنس ہمیں نہیں چاہیے۔ اونلی 1000 ٹیچنگ الاؤنس ملتا ہے، وہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایجوکیشن الاؤنس دیں جو کہ ہماری بیسک سیلری کے برابر ہو۔ میں حمیرہ یاسمین ACT فرام F74 IMCG سے ہوں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اساتذہ کے ساتھ یہ ناانصافی ہو رہی ہے۔ ان کو جو ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی معمولی سی، وہ واپس لے لی گئی، جبکہ ہمارے ہاں MNAs
और जो जजेस हैं उनकी तनख्वाहें कई गुना बढ़ा दी गई। बाकी शोबों में भी बहुत सी मराहत हासिल है, लेकिन अफसोस हमारे असातिज़ा इस जुल्म की चक्की में पिसते जा रहे हैं, उनके हकूक जो है उनको नहीं मिल रहे। कि इन टीचरों का ये कहना है कि कौमी असम्बली के अरकान की जो तनख्वाहें हैं उनको 1.5 लाख रुपए से बढ़ा के 5 लाख रुपए से जायद कर दी गई है। दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहों में भी कई गुना इजाफा किया जा रहा है। और फिर सबसे बढ़ के ये कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाहें हैं वो 10 लाख और 14 लाख से बढ़ा के 20 लाख और 25 लाख रुपए तक कर दी गई हैं। और जो हुकूमत है उन्होंने अभी तक किफ़ायत शारी की कोई ऐसी मिसाल कायम नहीं की जिससे ये मालूम हो कि हुकूमत जो है किफ़ायत शारी करके आवाम के जेबों से हासिल किया गया टैक्स का पैसा जो है उसकी बचत कर रही है। हुकूमत की अय्याशियाँ भी जारी हैं, हुकूमत के जो मुराद और सहूलियात हैं उनमें भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और एक ऐसी सूरत में कि जब तमाम मुराद याफ्ता तबकों के मुराद में इजाफा किया जा रहा है तो ऐसी सूरत के अंदर यहाँ सरकारी स्कूलों के जो टीचर्स हैं, जो मुलाजमीन हैं, उनको टैक्स में दी गई छूट को अचानक बगैर किसी वार्निंग के 2022 से वापस लेना ये यकीनन सरासर जुल्म और ज़्यादती है। हमने देखा है कि यहाँ पे टीचर्स जो हैं ये अचानक इतनी बड़ी तादाद में पहली बार वापस आए हैं और इस्लामाबाद के तमाम स्कूल और कॉलेजेस आज बंद हैं। बच्चे जो हैं बहुत कम तादाद में स्कूलों में आए हैं और यहाँ पे जो असातिज़ा के लीडर हैं, जो कायदीन हैं, उन्होंने खबरदार किया है हुकूमत को कि अगर टैक्स में दी गई इस छूट को फौरी तौर पे बहाल ना किया गया तो फिर इस्लामाबाद के तमाम सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बड़ी तादाद में असातिज़ा पहुँचे हैं वो यहाँ पे तमाम इस्लामाबाद स्कूल की जो सरकारी बसें हैं उनमें सवार होकर यहाँ पे पहुँचे हैं। और आने वाले दिनों में ये एहतजाज जो है इसमें मज़ीद शिद्दत भी आ सकती है। असातिज़ा की तनख्वाहों को अगर हम दूसरे महकमों के मुलाजमीन से मुवाजना करें तो दीगर महकमों के मुलाजमीन को खसूसी अलाउंस दिया जाता है जो 50% भी होता है, जो 100% भी होता है, जो 200% भी होता है, जो 300% भी होता है। लेकिन हमारे असातिज़ा कराम जो इस कौम के मामार हैं, जो इस कौम की नस्लों को तैयार करते हैं, उनको एक शर्मनाक मिकदार में टीचिंग अलाउंस जो दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए एक टीचिंग अलाउंस दिया जाता है इस जदीद दौर में। तो ये सरासर नाइंसाफी है। टीचर्स की तनख्वाहें दीगर मुलाजमीन, दीगर महकमों की मुलाजमीन की तनख्वाहों से बहुत कम है। तो हमारा मुतालबा है कि टीचर्स के लिए टैक्स कटौती 100% की जाए, टीचर्स के लिए टैक्स रिबेट जो है उसको 100% किया जाए ताकि असातिज़ा कराम अपने बच्चों को बेहतर तौर पर परवरिश कर सकें और असातिज़ा कराम की परचेजिंग पावर उन मुलाजमीन के बराबर हो कम अज कम जो दीगर महकमे में हैं और वो ज्यादा अलाउंस हासिल कर रहे होते हैं। आप बैठे हुए जिस सीट पे किसी उस्ताद से पढ़ के वहां पे पहुंचे हैं, कोई भी किसी उस्ताद के बगैर उस मकाम तक नहीं गया। शर्मिया की उसी उस्ताद को आज, उस टीचर को आज आपने मजबूर कर दिया। इससे बड़ी आप हमारे साथ दावे न करें कि हम उस्ताद को मकाम। सबसे पहले उस्ताद 5 अक्टूबर का दिन मनाते हैं, सलाम टीचर, और आप उसका उलट करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं ना हमें एतराज है आप हमसे ये टैक्स रिबेट छीन लें, हमें मंजूर है, मुझे मेरी मंजूर है, लेकिन दूसरी तरफ आप हमारे खून पसीने की कमाई को अपनी अय्याशियों में उड़ा रहे हैं। कुछ शर्म करें। मैं यही कहूँगा कुछ शर्म करें। अगर आपने शर्म है, किसी उस्ताद से पढ़ा हुआ है, मेरी बरादरी से सिर्फ रिक्वेस्ट है, अभी तक सोए रहे हैं नहीं, कुछ सोए रहे हैं। अगर पहले ही जाग जाते तो आज ये नौबत ना आती। अभी भी वक्त बहुत है, अभी भी हम सबको होश आना चाहिए और सब एक आवाज हो। हमारी तनख्वाहें, IMF का प्रेशर है, टैक्स नेट है और ये FBR का फेल्यूर है। बुनियादी तौर पर ये FBR का फेल्यूर है। FBR अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सका तो किसी ब्यूरोक्रेट्स की शरारत है कि उसने ये मशवरा दिया है कि ये टैक्स असातिज़ा से टैक्स लिया जाए
اور یہ ایک فیک منی ہے اور پیچھے 2022 سے لیٹر نکالا ہے کہ 2022 سے آپ کی ریکوری ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. اگر اس کی میں ایک چھوٹا سا ایک لطیفہ آپ کو سناتا ہوں کہ ایک گاؤں میں اندر جو ہے فوج ایک ملک کے اندر جو ہے برابر والے ملک نے حملہ کر دیا. تو ادھر کی فوج نے فیصلہ کیا کہ یہ برابر میں جو میراسیوں کا گاؤں ہے اس میں جا کے بھرتی کرتے ہیں. تو وہ جا کے وہاں پہ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی بھرتی کرتے ہیں تو آپ لوگ جو آ جائیں ہم لوگ. انہوں نے کہا یار اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آپ لوگ اب ہمارے پہ بس کے اوپر جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ ہمیں جنگ لڑیں گے تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ کائنڈلی آپ مہربانی کر کے ان سے صلح کر لیں. تو میرے خیال میں میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ نوبت آ گئی ہے کہ اب اساتذہ کے پیسے آپ چھینیں گے اور ہماری جیبوں سے پیسے نکالیں گے جو محکوم طبقہ ہے, تو میرے خیال میں پاکستان کو آپ ڈکلیئر کر دیں ایک ڈیفالٹ کنٹری ہے جس میں کوئی کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو پیسے بڑھانے کی ضرورت ہے. تو یہ میرا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے. اب میں جناب رئیس بھٹی صاحب سے التماس سے اپنے خیالات اور انتہائی ادب سے یہ گزارش ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے, مقررین بہت زیادہ ہے اور عمل کرنے والے ہیں, لیکن اپنا اپنا حصہ ڈالتے جائیں, پیغام دیتے جائیں, جلدی سے اپنا پیغام دیں. جناب بھٹی صاحب. بسم اللہ. محترم خواتین حضرات, اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے تمام ملازمین, پرنسپلز, وائس پرنسپلز, پروفیسر, ٹیچر, نان ٹیچنگ اسٹاف, میں آپ کی جرات کو سلام کرتا ہوں کہ آپ ایک معمولی مختصر نوٹس میں اپنی تعلیمی اداروں سے نکلے ہیں اور آج انتظامیہ کو, گورنمنٹ کو یہ بتائے کہ ہم سو نہیں رہے, ہم جاگ رہے ہیں. یکم جنوری ہمارے تنخواہ پہ جو ڈاکہ ڈالے گئے ہوتے, جو شکرفون مارے گئے بغیر کسی نوٹس کے, بغیر کسی اطلاع کے, صبح جو ہماری تنخواہیں, ہماری پیسے ہمیں مل گئی تو سارے لوگ سکتے میں پڑ گئے کہ جون میں جو 15% یا 25% اضافہ ہوا تھا 50% آپ نے جنوری تنخواہ میں کاٹ دیا. یہ میں سمجھتا ہوں حکومت یہ تعویل پیش کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے, ہم نے ٹیکس کا جو ریشو ہے وہ ہم نے صحیح کرنا ہے. میں تو بتاتا ہوں کہ ایک دن میں آپ نے 2 آرڈرز کیے مختلف. ایک آپ نے ٹیچرز کے سر پہ تنخواہ کاٹنے کی شکل میں تلوار چلا دی, دوسرا آپ نے پارلیمنٹیرینز کو جو وہاں پہ گالیاں بکتے ہیں, ایک دوسرے کو نیچے دکھاتے ہیں, کوئی قانون سازی نہیں کرتے, ہر قسم کی بارات وصول کرتے ہیں, ان کے یکمش اپوزیشن اور حکومت نے مل کے اپنی تنخواہ 5,19,000 سے زیادہ کر دی. شیم. آپ کو اگر ریونیو کی کمی ہے, آپ کو اگر بجٹ کے اخراجات میں کمی ہے, تو سب سے پہلے آپ قربانی دیں, اس کے بعد غریب عوام کے پاس آ جائیں. آپ کی عیاشیاں روز بروز بڑھ رہی ہے, کبھی کس کے نام پہ, کبھی کس کے نام پہ فری ایڈ ٹکٹس, تنخواہیں, مراعات. اب ایک MNA کی تنخواہ ہماری سیکٹری کی برابر ہوگی. آپ کرتے کیا ہیں, آپ پارلیمنٹ میں کیا کرتے ہیں, آپ کون سا پروڈکٹیو کام کرتے ہیں, آپ قوم کے لیے کیا مفید کام کرتے ہیں. آپ خزانہ آپ نے لوٹ لیا. آج کل تو یہ حالات ہو گئے کہ لوگ ٹیچر بننے پہ آمادہ نہیں ہے. مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو چپڑاسی ہے اس کی تنخواہ ٹیچر سے زیادہ ہے. پوری مہذب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اساتذہ کرام کو عزت دی جاتی ہے, اساتذہ کرام کو مراعات دی جاتی ہے. ہم سارے پڑھتے ہیں ڈاکٹر اشفاق والا وہ کہ باہر کی ملک میں اس کی ٹریفک چالان ہو گیا, کورٹ گئے, جب کو پتہ چلا کہ ٹیچر ان دا کورٹ, تو سارے جج سے میں سارے لوگ ان کی طرح میں کھڑے ہو گئے. ہمارے ملک میں الٹا نظام چل رہا ہے. آپ نے سختی کرنی ہے جو ٹیچرز پہ, آپ نے پولیو ڈراپ
दिलवाने जो टीचर, आपकी मर्दशुमारी कराने जो टीचर, आपकी बच्चे की ड्यूटी कराने जो टीचर, जहाँ पे तो मुश्किल काम होता है, जहाँ पे तो मुश्किल ड्यूटी होती है, जहाँ पे आपको शाम को निकलना पड़ता है, हमारे टीचर्स को कुर्बानी का बकरा बनाया जाता है। लेकिन अब ये ऐसा नहीं होगा। अब हम सारे एक पेज पे हैं, वो एजुकेशन कॉलेजेस हो, वो मेडिकल कॉलेजेस हो, वो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हो, वो स्कूल्स के टीचर्स हो, वो हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो हमारी सेक्रेटरी प्राइज हो, वो हमारी डेली वेजेस हो, हम सारे अपने हकूक़ के लिए मुतहद हो गए हैं और मुतहद रहेंगे। मैं हुकूमत वक्त से पूछता हूँ कि आप एजुकेशन की प्राइस को क्या मराद दे रहे हैं? एक तनख्वाह के अलावा आप हमें क्या दे रहे हैं? मैं खुद बेसिक ग्रेड का प्रिंसिपल हूँ, 21 ग्रेड में मैं तनख्वाह ला रहा हूँ, मुझे पूरी महीने का 5,000 का कन्वेंस मिलता है। आपको यहाँ पे एक 16 ग्रेड का आदमी है, 17 ग्रेड का आदमी सेक्रेटरीट में काम करता है, उनके पास गाड़ियाँ भी होती है, उनके पास ड्राइवर्स भी होते हैं, उनके मोबाइल की सहूलत भी होती है, उनकी टेलीफोन की सहूलत भी होती है। आप हमें क्या दे रहे हैं? हमारे साथी सुकराम साल में खड़े हैं, कई सालों से हमारे हायरिंग की बजट का इशू है, बल्कि मकान हमें मकानों से बेदखल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के कारों पे रूल जो नहीं थी। हम कहाँ जाएंगे? ये हायरिंग, ये हमारी तनख्वाह का हिस्सा, ये मेरा बुनियादी हक है कि इस्लामाबाद में तमाम पाकिस्तान से जो हमारे मुलाजिमीन आए हुए हैं उनको बाइज्जत रिहाइश दी जाए। आप बड़े बड़े कुर्सियों में, बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, मैं तनख्वाह मुझे नहीं मिलती कि मैं तनख्वाह का बुनियादी हिस्सा है कि मैं मकान जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को आज कोई मकान किराए भी नहीं देता। अभी रिसेंटली आपने जो टैक्स की एग्जेम्पशन हमारी ये खत्म कर दी, जो पहले 70% थी, आपने 40 कर दिया, खामोश रहे। 40 ही आपने 25% कर दिया, हमारे साथ खामोश रहे। 25% आपने 0 कर दी, तो हम मज़ीद खामोश नहीं रहेंगे। मैं हुकूमत वास्ते कल भी मैंने अपने चार्टर डिमांड किया हुआ है कि हमें 100% टैक्स रिबेट चाहिए, मेरे इनकम टैक्स पे 1 पैसा भी नहीं कटेगा। मैं तमाम एजुकेशन एम्प्लॉयज के लिए एजुकेशन अलाउंस का मुतालबा करता हूँ, वो टीचिंग हो, नॉन टीचिंग हो, हेड्स हो, प्रिंसिपल हो, टीचर को, हमें एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर टीचिंग अलाउंस मिलना चाहिए। मेरे रजिस्ट्रेटेड टीचर्स कई सालों से उड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने तारीख में धरना दिया, उनको जल्द अज जल्द रेगुलराइज किया जाए, उनको रेगुलर एम्प्लॉयज के तौर पर हमारे डिपार्टमेंट में सम किया जाए। मेरे टेलीविजन टीचर्स जिनके सर पे हर वक्त तलवार लटकती रहती है, एक गवर्नमेंट आती है दूसरी तरफ बाल फेंकती है, दूसरी तरफ बाल फेंकती है। हाई कोर्ट के बाकायदा क्लियर ऑर्डर्स है कि टेलीविजन मुलाजिमीन को फौरन रेगुलर करते हैं। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, हमारी जो भी कमेटी बनेगी, जो भी हमसे बात करेगा, ये हमारे 4 इशूज हैं: 100% टैक्स रिबेट, एजुकेशन अलाउंस एक बुनियादी तनख्वाह के बराबर। अब मुझे तो जिस तरह आप ये बात की गई, हमें तो शर्म आती है कि किसी मैं बताऊं कि मैं 20 ग्रेड में काम कर रहा हूँ और मुझे 1,000 रुपये टीचर की अलाउंस मिलता है। तो आज भी आज मैं इंतजामिया को बताना चाहता हूँ कि आज हमारा अलामती हड़ताल है। आज हम 1 दिन के लिए हमारे इदारे खुले हुए हैं। 1 हफ्ते के अंदर अगर हमारे मुतालिबात नहीं माने गए तो आपके तमाम इदारे भी बंद रहेंगे, आपके सालाना इम्तिहान भी नहीं होंगे और आपके तमाम रूल्स बंद रहेंगे।
जब हम बात करते हैं उस बात पे फिर अमल भी करते हैं। इस बात को गलती न समझी जाए कि हमें मजबूर न किया जाए कि हम तमाम इदारों को ताले लगा दें। और ये हम पहले 2022 में ये हम दिखा चुके हैं आपको, जब MCI के शुदा हम इस्लामाबाद के तमाम इदारे बंद कर दिए थे। आप सब हम एक छत्र के नीचे इकट्ठे हैं, जिसमें मैंने पहली बात थी, वो डॉक्टर रहीम रहमान हो, वो प्रोफेसर रशीद खान हो, वो पट्टी साहब हो, हमारी नॉन टीचिंग स्टाफ की मुलाजिमीन हो, हमारे अंदर HG मॉडल स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी तफरीक खत्म हो गई है। हम तमाम एजुकेशन जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी मुतालिबात मनवा करेंगे। आप लोग हमारे आइंदा अमल का इंतजार करें। एक हफ्ते का टाइम हमने इंतजामिया से भी हमारी बात चल रही थी, एक हफ्ते का टाइम उनको हम देते हैं। मुतालिबात मंजूर नहीं हुए तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप मौजूद है हमारे इदारों में, तमाम हमारे रहनुमा, हमारे लीडर्स, हमारे कारकुन मौजूद है। इंशाल्लाह पैगाम आपको जाएगा और सब आपने फिर मुतहद होकर इस पर अमल करना है। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम यहाँ पे एक अलामती वॉक करेंगे इस रोड से लेकर चैना चौक तक। रोड के ऊपर अपना एहतजाज रिटार्ट कराएंगे। इंतजामिया से हमारी बात हो गई है, हम यहाँ पे रोड के ऊपर पुरअमान तौर पर एहतजाज रिटार्ट कराएंगे। और ये जो हमारी मुतालबात है, ये कोई नाजायज बात हम नहीं कर रहे, हम कोई गलत चीज नहीं मांग रहे। हम हमारा राइट है, जो हमारा राइट है मुझे छीना गया है, इंशाल्लाह चीज को बताएंगे। तो तमाम साथी एक मिनट से इस गाड़ी की पीछे लाएंगे और यहाँ पे एक करके फिर हम पीसफुल यहाँ से डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन आपने टीम रहना है, आपने हमारे आइंदा अमल का इंतजार करना है। इस एहतजाज के दौरान पुलिस की ड्यूटी पर मौजूद ये सरकारी मुलाजमीन, जिनके बच्चे इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, और उनकी भी असातिज़ा कराम से हमदर्दियाँ तो हैं, मगर ये भी अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आज उस्तादों से डंडे का बदला लेने का मौका आपके पास। उस्ताद जो आप बचपन में डंडे खाते रहे, उस्ताद कौम के मेहमान हैं, हमारे उस्ताद हैं, इसलिए डंडा लेकर आए हुए हैं आप इनके लिए। ये तो एक सरकारी एक ड्यूटी है, डंडे को हमने उस्तादों के लिए यूज़ तो नहीं करना। ये सरकारी स्कूल के असातिज़ा हैं, बज़ाहिर तो इन्हीं असातिज़ा के शागिर्द ही आज हुकूमत के अहम ओहदों पर बैठ के इन्हीं असातिज़ा के टैक्स में दी गई छूट को वापस लेने के फ़ैसले कर रहे हैं। मगर हकीकत ये है कि आज की ब्यूरोक्रेसी में और आज की हुकूमत में अक्सरियत उन बड़े अशराफिया की है कि जिन्होंने अपनी तालीम इन सरकारी स्कूलों में हासिल नहीं की और ना ही उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में कभी पढ़े हैं। ये वो लोग हैं जो या तो पाकिस्तान में ही अशराफिया के मखसूस तालीमी इदारों से डिग्रियां हासिल करके अहम ओहदों पे बैठे हैं, और ना ही ये खुद जो है पाकिस्तान के इन सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। इसीलिए आज ये असातिज़ा सड़कों पर हैं और एहतजाज कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना, सबसे हैरानकुन और शर्मनाक सूरत हाल ये है कि स्कूल के असातिज़ा जो कौम के मेमार जिनको कहा जाता है, उनका टीचिंग अलाउंस 1000 रुपये महीना है, जबकि हमारे इसी मुल्क में जो आइनी इदारे हैं, जो अदलिया है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ पे जो जुडिशल अलाउंस है, जो उनके अपने काम करने का अलाउंस है, ये जो उनकी तनख्वाह के अलावा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों का अलाउंस 10 लाख रुपए है। और ये अलाउंस उस काम के नाम पे है जिस काम की वो तनख्वाह भी लेते हैं, जबकि टीचर्स का जो टीचिंग अलाउंस जिन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों बच्चों को एक एक क्लास में डील करना होता है, एक एक क्लास में 50-50, 60-60 बच्चे होते हैं,
उनका टीचिंग अलाउंस महीने का 1000 रुपये है, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का 8 लाख रुपए और 10 लाख रुपया जुडिशल अलाउंस महीने का होता है। और ये वो जजेस हैं और ये वो आला अदलिया के अफसरान हैं, अहदेदारान हैं कि जो अपना काम जैसा भी कर रहे हैं वो हम सब के सामने है। और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के साथ उनको दी गई टैक्स की छूट के हवाले से जो ज़्यादती है कैसे वक्त में की गई है, जब मुराद याफ्ता तबके की मुराद में दिन ब दिन मज़ीद इजाफ़ा किया जा रहा है। आज ये असातिज़ा सड़कों पे हैं और इनके जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ये बच्चे इनका भी मुस्तकबिल शायद ऐसा ही है जैसा इन सरकारी स्कूल के असातिज़ा के हैं। और अशराफिया के बच्चे और ख़ुद अशराफिया, उनको शायद कभी भी ना तो सरकारी स्कूलों में से वो आए हैं, ना ही इन सरकारी स्कूलों में कभी मुस्तकबिल में भी पढ़ना पड़ेगा। मतीउल्लाह जान, MJTV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया सर। आपको